تاجروں کی ملک گیر ہڑتال کا دوسرا روز، بازاروں، مارکیٹوں اور منڈیوں میں دکانیں آج بھی نہ کھلیں۔ تاجر رہنماؤں نے تنازع حل نہ ہونے پر غیر معینہ مدت تک شٹر ڈاؤن کا عندیہ دے دیا۔ آئندہ کا لاہ عمل آج طے ہوگا۔ ہڑتال کے باعث حکومت کو ٹیکس کی مد میں 4 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ آزادی مارچ لاہور سے اپنی آخری منزل اسلام آباد روانگی کے لیے تیار۔ گریٹر اقبال پارک میں مولانا فضل الرحمان کے خطاب کے بعد شرکاء آگے بڑھیں گے۔ شرکاء کے لیے پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ ادھر گجراوالا میں قافلے کے استقبال کے لیے تیاریاں زوروں پر۔ شرکاء کی تواضع بریانی اور قورمے سے کی جائے گی۔ لاہور سروسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی حالت بدستور خراب۔ پلیٹلیٹس معمولی اضافے کے بعد 28,000 ہو گئے۔ انجیکشن کا کورس ختم ہونے پر اسٹیرائڈ سے علاج شروع کر دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ آج پھر تفصیلی معائنہ کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی اسپتال آمد کا امکان، نواز شریف کی عیادت کریں گے۔ انٹرنیٹ صارفین کے لیے اچھی خبر، زیر سمندر کیبل کی فنی خرابی دور۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس بحال ہو گئی۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق زیر سمندر 2 فائبر آپٹک کیبلز میں فالٹ کو ٹھیک کر لیا گیا ہے۔ خرابی کے باعث صارفین کو گزشتہ روز سے براؤزنگ مسائل کا سامنا تھا۔ پاکستان پر ایک سال میں بیرونی قرضہ 22 ارب 50 کروڑ ڈالر بڑھ گیا۔ جون 2019 میں قرض 57 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچا۔ دیگر اداروں سے لیا گیا قرض 57 ارب 40 کروڑ ڈالر ہوگا۔ بانڈ کے ذریعے لیا گیا قرض 6 ارب 32 کروڑ اور بیرونی کمرشل بینکوں سے لیا گیا قرض 9 ارب ڈالر ہوگا۔ میڈیا اینکرز کے ٹی وی شوز میں بطور مہمان شرکت پر پابندی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد وحید نے سینئر صحافی عارف حمید بھٹی سمیت دیگر کی آئینی درخواست پر سماعت کی۔ The ayes to the right, 438. The noes to the left, 20. The ayes to the right, 438. The noes to the left, 20. So the ayes have it. برطانیہ میں قبل از وقت 12 دسمبر کو انتخابات کا اعلان۔ اراکین پارلیمنٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی قرارداد منظور۔ بل کے حق میں 438 اور مخالفت میں 20 ووٹ ڈالے گئے۔ دارالعوام سے منظوری کے بعد بل دارالمرا کو بھیجا جائے گا۔ قومی T20 کرکٹ ٹیم سڈنی میں موجود۔ آج تیسرے روز بھی کھلاڑیوں کی سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس۔ قومی ٹیم نے پہلے 2 دن کے نسبت آج سخت مشق کی۔ بیٹنگ اور بالنگ کے ساتھ فزیکل فٹنس کی مشق بھی کی گئی۔ قذافی اسٹیڈیم کا میدان، آمنے سامنے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان۔ آخری T20 میں قومی ویمن ٹیم کا مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 118 رنز کا ہدف۔ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی جانب سے صبا نذیر نے T20 ڈیبیو کیا۔ اور سریلی اور مدھر دھنوں کے خالق خواجہ خورشید انور کی موسیقی آج بھی قائم دائم۔ خواجہ خورشید کے چاہنے والے آج ان کی 35ویں برسی منا رہے ہیں۔ مرزا صاحبہ انتظار، زہر عشق سمیت درجنوں فلموں کو موسیقی دیکھ کر بام عروج بخشا۔ نور جہاں کی آواز اور خواجہ صاحب کی موسیقی نے خوب دھوم مچائی۔ بجے کے بلیٹن میں بات کریں گے تاجروں کی ہڑتال کی، مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ کی اور مختلف عدالتی کارروائیوں کا ذکر بھی ہوگا اسی بلیٹن میں۔ اور میں ہوں ایشال سلیمان۔ آپ کے ساتھ اس بلیٹن میں میں ہوں مدیحہ مسعود۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی شرط اور حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف تاجروں کی ملک گیر ہڑتال کا آج دوسرا روز ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مارکیٹیں اور بازار مکمل طور پر بند پڑے ہیں۔
ताजरों ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक शटर डाउन की धमकी दे दी है। आइंदा का लाहे अमल आज तय किया जाएगा। हड़ताल के बायस हुकूमत को टैक्स की मद में 4 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ताजरों की हड़ताल से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे। आपको बताएं कि शनाख्ती कार्ड की शर्त और हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के खिलाफ ताजरों की मुल्की हड़ताल का दूसरा रोज है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में मार्केटें और बाजार बंद हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद, कराची और पेशावर से हमारे नुमाइंदगान। कराची से हमारे साथ मौजूद है शहराज अहमद और राना तारिक हमें इस्लामाबाद की मार्केटों की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि पेशावर से इरफान मूसाज़ई हमारे साथ होंगे। कोयटा से किफायत अली भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची शहर का, जहां पर सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए मौजूद है शहराज बताएगा कराची में आज के रोज क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हुकूमत और ताजिरों के दरमियान जो डेडलॉक की सूरत हाल है वो ताहाल बरकरार है। गुज़िश्ता रोज FBR और ताजिर रहनुमाओं की मुलाकातें हुई थी, मीटिंग्स हुई थी और मामलात हल करने के हवाले से बातचीत भी हुई, लेकिन ये तमाम तर बातें जो हैं सिर्फ नाकाम हुई हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कराची के बेसर बाजार, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर, बोल्टन मार्केट, इसके अलावा जोड़िया बाजार और शहर की जो अहम मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वो आज दूसरे रोज भी बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को मुख्तलिफ अशिया के हुसूल में काफी परेशानी का सामना है। ताजिर रहनुमाओं से जब हमारी इस हवाले से बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि जब तक हुकूमत 50,000 से ज़ायद की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है वो खत्म नहीं करती, इसके अलावा इनकम टैक्स के मामला, इसके अलावा पुराने मोबाइल की दरामदार पर जो ड्यूटी आयद की गई है उससे कारोबार काफी मुंजमद हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में। तो ये तमाम तर जो बातें हैं वो हुकूमत के सामने रखी गई हैं, ताहम जो हुकूमत की नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से इनके हल के लिए ताहाल कोई इक़दामात नहीं किए जा सके। ज़बानी कलामी तो तसल्लियां दी जा रही हैं ताजिरों को, मगर कोई नोटिफिकेशन। ठीक है शहराज, आप हमारे साथ ही रहिए। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, राना तारिक हमें वहां पे अपडेट करेंगे। राना तारिक बताएगा आप पारा मार्केट में क्या सूरत हाल है, क्या आज के रोज भी दुकानों को ताले लगे हुए हैं? आज इस्लामाबाद में दूसरा रोज़ है शटर डाउन हड़ताल का। इस वक्त आपारा मार्केट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल ताजिरों की जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर इस वक्त शटर डाउन हड़ताल की गई है। ताजिरों का यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे और जब तक की मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते आइंदा का जो लाहे अमल है आज शाम तक हम वाज़ेह कर देंगे कि हमने ये प्रोलॉन्ग करना है या इस शटर डाउन को हड़ताल को ख़त्म करना है। लेकिन आज हमारी जो बात हुई अजमल बलोच से, उनसे हमने यही पूछा कि डेडलॉक कहाँ पे आ रहा है, तो उनका यही कहना था कि शनाख्ती कार्ड की शर्त पे ही डेडलॉक है। जब तक हुकूमत शनाख्ती कार्ड की शर्त को वापस नहीं लेती हम उस वक्त तक हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं होते। उनका ये भी कहना था कि ताजर हर सूरत टैक्स देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टैक्स नेट में हर कोई शामिल हो, ये हुकूमत को देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत का रवैया जो है वो संजीदा नहीं है। हुकूमत जो है हमारे साथ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। जो फार्म दिया गया है कि ताजिरों को, वो फार्म तो मशीर खजाना जो है वो खुद फिल नहीं कर सकते, हम आम ताजर कैसे फिल कर सकते हैं। हुकूमत जो है अपने जो मामलात हैं उनमें लचक दिखाने के बाद ही हम जो है किसी सूरत में हुकूमत के साथ बैठेंगे। ताहम मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, शहरियों की जिंदगी जो है वो ताजीरन है, कारोबारी मामलात जो है वो ठप होकर रह गए हैं, शहरियों को भी परेशानी है, कारोबारी लोग हैं उनको भी परेशानी है, क्योंकि लोग इस वक्त परेशान हैं कि वो खाएंगे कहाँ से। बाद लोग तो ऐसे हैं जो सुबह आते हैं, शाम को उनको मजदूरी मिलती है, तब जाके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन लोगों को परेशानी भी है, इसके साथ साथ ताजिरों को भी परेशानी है और उस परेशानी का वो सामना कर रहे हैं। जी हम रुख करेंगे फैसलाबाद का। फखरुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद है। फखरुद्दीन सैयद बताइएगा कि घंटा घर मार्केट के ताजिर क्या कहते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या वो भी एहतजाज में शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के तारीखी बाजार घंटा घर में, जहाँ पर ये जो बड़ी मार्केट है और ये काफी अरसे से पुरानी तारीखी मार्केट है और यहीं से खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तजारती मार्केटों को यहाँ से सामान मुख्तलिफ किस्म का तरसील जो है वो किया जाता है। लेकिन जो है ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। यहाँ पर कोई किसी ने भी दुकान नहीं खोली, तमाम जिसमें अगर आप देखें तो कपड़े की दुकानें बंद है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो नहीं है, यहाँ पे तमाम दुकानें बंद है। इसके अलावा
जो मुख्तलिफ मटीरियल्स की और जो सामान है उनकी तमाम के तमाम जो है जो दुकानें बंद हैं। तमाम जो ताजिरों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई है, इसको जो है वो खत्म किया जाए। वो रजामंद हैं इस पर कि यहाँ पर अगर वो हुकूमत के दरमियान उनके मुज़ाकरात भी हुए हैं और उन्होंने उसको खुद तस्लीम किया है कि वो टैक्स देने को तैयार है, मगर इस तरीके से टैक्स दिया जाए कि उनकी रजामंदी हो। वंडा टैक्स वो किसी सूरत में ही नहीं मानते। तमाम पूरे पेशावर शहर में अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल शटर डाउन है, लेकिन सदर में जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर जुज़वी हड़ताल हमें नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ताजिरों ने जीती भी है, वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं, यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बिहार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि ताजिरों को तो एंगेज कर दिया जाता है, जैसे वो उन्होंने इस्लामाबाद में मुजाहरा किया था और उनको यकीन दहानी की गई थी कि आपके तमाम के तमाम जो है मुतालबात हैं जायज हैं, उनको तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और उनको सिर्फ और सिर्फ यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। पेशावर के ताजिरों का भी यही कहना है कि उनको बुला लिया जाता है, बिठा लिया जाता है, फिर उनका इसी टाइम तय होता है। उनका भी कहना है कि इस दफा की उनकी जो हड़ताल है वो मुकम्मल तौर पर उनसे मुआहदा करेंगे, तहरीरी मुआहदा लेंगे, उसके बाद ही पर वो कुछ फैसला करेंगे। लेकिन आज इनका एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें ये बताया जाएगा कि आइंदा कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी या इसको फिर वो खत्म करने का ऐलान करेंगे।